اچھا، تو بات یہ کیا ہو رہی تھی، میاں میر. تو میاں میر کے پاس بادشاہ بھی حاضری دینے آتے تھے. جہانگیر جب آیا ہے تو جہانگیر بادشاہ کو میاں میر کے جو فقیر باہر بیٹھے ہوتے شاگرد نے باہر روک لیا تھا بادشاہ کو. اب جو کہانیاں لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں، تو یہ بادشاہ کے لیے بہت بڑی بات تھی. وہ دنیا کے سب سے امیر ترین لوگ تھے اس وقت. انہیں تو بڑا بادشاہ دنیا کی کوئی نہیں سی کدھر بھی. ٹھیک ہے نا. بعد میں یورپ امریکہ یہ بعد میں بڑے ہوئے ہیں، اتنے بڑے نہیں ہوئے، مطلب پھر بھی یہاں سے لوٹ کے سارا پیسے سے انگلینڈ لنڈن بنے. تو روک لیا. تو مجھے وہ فارسی کے لفظ نہیں آتے، فارسی میں نے پڑھی نہیں ہے، آپ نے پڑھنی ہے، مجھے پھر بتائیے. تو ہوا یوں کہ بادشاہ کو تھوڑا سا اچھا نہیں لگا. ہی واز اے بٹ سلائٹڈ آن اٹ. اور تو بہرحال انہوں نے اندر جب انہوں نے کہا کہ ہاں بادشاہ صاحب کو آنے دیں، تو گئے. تو انہوں نے بادشاہ نے ملنے کے بعد ناراضگی کا اظہار کیا، تھوڑا سا مطلب شکوہ کیا کہ فقیروں کے دروازوں پہ تو کتے نہیں ہونے چاہیے. تو میاں میر نے کہا کچھ دنیا کے کتے آ جاتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں. دنیا حاصل کرنے والے کتے جو آتے ہیں سگے دنیا، ان کے لیے رکھے ہوئے. تو بادشاہ ان کے پاس آیا تھا دعا کروانے کے لیے کہ میں دکن ایک جگہ ہے وہاں پہ حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور وہاں پہ اپنی حکومت کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے، تو آپ ہمارے لیے دعا کریں. تو اس نے پوچھ لیا کس لیے ان کا جا رہے ہیں، تو آپ ہمارے لیے دعا کریں. تو اس انہوں نے کیا کتابوں میں لکھا ہوا کہ اتنی دیر میں ایک فقیر آیا اور اس کے پاس کوئی 1 یا 2 روپے تھے. فقیر نے کہا کہ میرے پاس یہ ہیں، کسی نے لینے ہیں. تو انہوں نے کہا پوچھ لیں. میاں صاحب نے کہا کسی پوچھ لیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی لے لے. تو جو بھی 8-10 بندے قریب بیٹھے ہوئے تھے ان کے، وہ جو فقیر ہوتے ہیں یا شاگرد ہوتے ہیں، تو انہوں نے پوچھا یہ آپ نے لینے ایک ایک سے. ان کا نہیں میں کی کرنا ہے، آپ نے لینے ہیں میں کرنا ہے. تو جب ساروں نے کہہ دیا نہیں لینے، تو بادشاہ سلامت ایک سائڈ پہ بیٹھے تھے. تو میاں صاحب نے کہا کہ بادشاہ کو دے دیں، اس کی بھوک ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ ان میں سے سب سے بھوکا تو وہی ہے نا جو اتنی بادشاہت کے باوجود ابھی مانگنے آیا ہے. تو جو مانگنے آیا ہے اسے دے دو. یہ اتنے بڑے لوگ تھے، ڈرتے نہیں تھے. اس کے بعد آپ کو دارا شکو کی تو میں نے بتائی ہے. دارا شکو تو ان کا بالکل ہی بادشاہ تھا لیکن ان کے پاؤں میں بیٹھتا تھا. تو ایک دن پوچھتا ہے کہ کوئی ایسا خوبصورت آدمی فوت ہو گیا ہوگا یا ان کے ذہن میں. دارا شکو تو بہت پڑھا لکھا بندہ تھا. اولیاء کی سیرت کے بارے میں جو مشہور کتابیں ہیں ان میں ایک دارا شکو نے خود لکھی تھی، تاریخ آف اولیاء پہ. تو خود بھی بہت بڑا تھا وہ. تو کیا ہوا کہ وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی خوبصورت چیزیں بناتا کیوں اگر مٹی میں رول دینی ہوتی ہیں تو. تو میاں میر نے بڑا اچھا جواب دیا تھا کہ مٹی کی یہ اوقات کب سے ہوئی کہ بنانے والے سے پوچھے. تو ہماری ہمت کیسے ہوئی ہے کہ تم اللہ سے پوچھو کہ تو کیوں رول دینا، ان کی مرضی ہے بنائے رول دے. آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے. تو یہ بڑے لوگ تھے نا جو میاں میر. تو ان کے وہاں پہ مزار ہے. تو یہ بات کیونکہ وہاں جائیں تو پھر پتہ ہونا چاہیے نا کسی کے ادھر جانا ہو. یہ نہیں کہ ان سے مانگنے جانا ہوتا ہے. ان جگہوں پہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، فرشتے، وہ چیزیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں. تو آپ تو ان کا حصہ بننے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی برکت سے، یہاں کی برکت سے ہمیں دے. مانگنا اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے. یہ عقیدہ اپنا ٹھیک رکھنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تو ابھی بھی آپ جائیں تو بڑے بڑے لوگ ہیں. ڈاکٹر اقبال بھی تو ادھر ہی دفن ہے نا. واصف علی واصف ادھر دفن ہے. میاں میر میانی صاحب کے قبرستان میں. ڈاکٹر اسرار دفن ہے. ڈاکٹر اسرار میانی صاحب کے قبرستان میں تو نہیں ہے، وہ شاید گارڈن ٹاؤن میں اپنے یہاں پہ ہوتے. تو قبرستان سے یاد ہے کہ وہاں پہ سب سے بڑا جو قبرستان ہے نا لاہور کا، وہ ہے میانی صاحب کا قبرستان. ہمارے جو دوست فوت ہو گئے تھے 2 سال پہلے، کیا نا اقبال منیب صاحب، ان کو بھی ہم نے میانی صاحب کے قبرستان میں دفن کیا تھا. تو وہاں پہ اور اسی طرف دفن کیا تھا جس طرف واصف علی واصف صاحب کی قبر ہے، اسی کارنر. بس اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں فوت ہوئی، ان کو بھی ادھر ہی دفن کی. تو میانی صاحب میں بہت بڑے بڑے بندے دفن ہیں. ٹھیک ہے نا، مطلب امپورٹنٹ لوگ دفن ہیں. ایون گارڈن ٹاؤن کے قبرستان میں ایک افغانستان کے ایک بادشاہ بھی دفن ہے. اور گاما رستم زمان پہلوان سنا ہوا ہے کہ تو کو رستوں میں. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا لاہور میں، گاؤں میں تو وہ چیز نہیں آئی ہوگی. تو لاہور میں جو ہماری کاپیاں ہوتی تھی 3ری 4تھی میں، ان کاپیوں کے باہر اس زمانے کے جو کارٹون ہوتے تھے وہ بھی بنے ہوتے تھے. لیکن اس زمانے میں
गामा पहलवान के फोटो बना होता था, और गामा पहलवान अपनी एक बहुत बड़ी लाठ लेके, लाठ उन्हें मिलती थी बतौर इनाम भी। गामे पहलवान को दुनिया भर में उस वक्त कोई नहीं हरा सकता था, दुनिया भर में, पूरी दुनिया में। इसलिए उन्हें रुस्तम ज़मान, रुस्तम ज़मान का मतलब है कि पूरी दुनिया का रुस्तम, मतलब है जो यूरोप अमेरिका के पहलवान थे उनमें से भी कोई गामे का मुकाबला किसी ने नहीं किया। एट द एंड गामे पूरी दुनिया में नंबर 1 था। इंडिया में अब भी एक जगह पे, एक म्यूजियम में एक 1200 किलो का पत्थर पड़ा हुआ है। 1200 किलो का मतलब हुआ 30 माणा, और उसमें लिखा हुआ है कि गामा पहलवान जब 22 साल का था तो ये पत्थर उसने दोनों हाथों से अकेले उठा के एक जगह से ऐसे इधर रखा था। 30 माणा, इतना बड़ा बंदा था। तो ये भी लाहौर में, वो भी उनका घर भी वॉल्ड सिटी में था, उनकी भी कब्र वही है। अब शायद उनकी कब्र को कोई मेंटेन करने वाला भी ना हो, लेकिन पता होना चाहिए कि दुनिया में लोग आते हैं, और लेकिन अच्छे लोग थे। अच्छा, ये बात भी होगी, मियानी साहब के कब्रिस्तान की भी बात होगी। फिर आ गए यहाँ पे कौन लोग? अंग्रेज लोग। लेकिन अंग्रेजों से पहले कौन आए? सिख। लाहौर चूंकि अमीर शहर था बहुत ज्यादा, मैं ये एक जगह बता दूं जो मैंने हमें जान के बनाई है कि ये दरिया पार करें तो यहां पे एक बहुत बड़ा मकबरा है जहांगीर का और नूरजहां का। नूरजहां नाम सुना हुआ? एक तो नूरजहां जो गाने गाती थी, मलका तरन्नुम, नहीं, एक वो नूरजहां थी, वो तो हमारी जिंदगी में ही फौत हुई इधर कराची में। और एक नूरजहां जिसका आप गाने सुनते हैं तो दुनिया च होर की लैना दी एक तरह प्यार मैंने मिला, एक तो वो है ना नूरजहां, वो गाना गाने में बहुत बड़ी है, ठीक है ना। नूरजहां ने मतलब ये इवन लता पिछले दिनों फौत हुई है फरवरी में, तो नूरजहां, लता, ये गाने में अपनी कैटेगरी में तो बहुत बड़े लोग हैं ना। तो वो नूरजहां और हम जिसकी बात कर रहे हैं जिनका मकबरा इधर है, ये नूरजहां मलका थी। जहांगीर असल में, जब जहांगीर बादशाह, आप कह लें कि एग्जिस्टिंग सारा वहाँ से लेकर काबुल, अफगानिस्तान, आजकल का पूरा पाकिस्तान, पूरा इंडिया, पूरा कश्मीर, बांग्लादेश, ये सारा उन्हीं के पास था। तो दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोग थे। तो मलका उस जमाने में असल में सारी बादशाहत मलका चला रही थी। हम जब बच्चे होते थे ना, तो मेरी माँ, क्योंकि 5 जमात पढ़ी हुई आई, तो उनको उस्तानियाँ बताती थी कि बादशाह एवं ही आई, बादशाह के पीछे असल में मलका बैठी होती। तो जो भी कोई मसला मसाइल आते थे ना कि इधर फौज द की करिए, इधर पैसे चाहिए देने, इधर मतलब किसानों को क्या करना है, होता है ना, अब 2000 घोड़े चाहिए देने, इतने स्कूल का कुछ करना, कुछ भी बादशाह के कितने रोले होते पूरे शहर। तो वो असल में बादशाह सलामत नहीं हल कर रहे होते थे। हमारी माया में बताती होती थी कि वो मलका से पूछते थे, तो नूरजहां बताती थी कि ये करो। तो असल हुकूमत किसकी थी? नूरजहां की। और नूरजहां वाकई बहुत बड़ा बंदा था। नूरजहां तो शर्त लगा लेती थी उनके जर्नैलों से कि भला ए हिरन जानते पहले मारो कम। उनके नहीं निशाने लगते थे, उस मलका के लगते थे। मतलब उसने अपनी जिंदगी में टाइगर भी मारे हैं और हिरन भी मारे हैं, और तीर चलाती थी, उससे तीर कोई नहीं चलाता था, तलवार चलाती थी, तलवार ऐसा कोई नहीं चलाता था, घोड़ा दौड़ाती थी तो घोड़ा ऐसा कोई नहीं दौड़ाता था। तो मलका इस किस्म की मलका थी। मलका इतनी सियानी थी कि जैसे मैं आपको बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये खुद देखी हुई है जगह पे। हम एक दफ़ा, मैं 6 हफ्ते कश्मीर में CSS के दौरान हमारी ट्रेनिंग फौजियों के साथ होती है, तो बिम्बर एक जगह है, बिम्बर में रहे, तो वहाँ पे एक किला है। तो हर 8, 10, 12 किलोमीटर के बाद एक एक किला है, जो ऊंची जगह है ना, पहाड़ है, तो ऊपर किला बना हुआ है। फिर देखते थे वो अगले पहाड़ पे भी एक किला बना हुआ है, फिर उससे अगले पहाड़ पे भी किला बना। क्यों? बादशाह ने जब ट्रेवल करना होता था तो किले पर से झंडियां लहरा के कहते थे कि बादशाह सलामत पहुंच गए हैं, तो हम निकल दे पे ने। तो वो जो आजकल तो हम फोन करते हैं ना, उससे पहले टेलीग्राफ होते थे, तो उस जमाने किला टू किला होते थे झंडे। तो उस किले वाले को पहले पता चल जाता था कि बादशाह सलामत ने ये कर लिया, ये कर लिया, अब निकल रहे हैं, अब तैयार हो जाओ फलाना। इसी तरह जो स्ट्रेट रोड होते थे उसमें घोड़े दौड़ा जाते थे, जैसे शेर शाह सूरी ने यहाँ पे बनाया। तो ठीक है, समझ गया आप बात। तो मलका नूरजहां में बताया गया कि यहाँ पे जहांगीर बादशाह की एक कब्र सी बनी हुई है, एक किला है और उसके अंदर एक अंदर जाकर ना एक कब्र सी बनी हुई है। तो कहा कि इधर जहांगीर बादशाह की आंद्रा दफन है, आंतें दफन हुई हुई हैं। जहांगीर बादशाह खुद तो इधर दफन हुआ है लाहौर में। तो हमने कहा जी इस क्या स्टोरी है? तो उन्होंने कहा कि हुआ ये कि कश्मीर से वापस आते हुए बादशाह फौत हो गया, ठीक है। और स्टोरी ये है कि बादशाह बीमार हो गया, मलका भी बीमार हो गई, मलका ज्यादा बीमार हो गई और साथ बादशाह भी थोड़ा थोड़ा बीमार हो गया।
तो हकीम हमेशा उनके साथ साथ होते थे, और जो सबसे बड़े हकीम होते थे वो बादशाह के पास ही होते थे। मलका को फ़ायदा नहीं हो रहा था, लगता था कि मलका गई। ठीक, तो उन्होंने लाहौर में एक उनके जैसे बुजुर्ग होते हैं थे, उनका नाम था एहसान रहमतुल्लाह अलैह, तो उनको बुला भेजा कि उन्हें कहा कि आप कुछ दुआ करें कि हम मलका जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई। तो उन्होंने कहा मैं दुआ करता हूँ और मुराकबा करता हूँ, जो भी वो उनका होता था। तो वो रात को, सुबह उन्होंने कहा कि मुझे ये कश्फ हुआ, ये बताया गया, ये ख्वाब आया, जो भी है, कि आप दोनों में से एक ने मर जाना है, और अब मुझे बताएं कि कौन जाना चाहता है, बादशाह मर जाए या मलका मर जाए। अब सोचे, इतनी होती है मोहब्बत जहां होती है। बादशाह ने कहा नहीं, मैं मर जाऊं, मलका को रहने दो। तो उन्होंने फिर जैसे होता दुआ की। असी तो बीवियां समझते हैं ना कि बीवियां तो कोई नहीं है, इंशाल्लाह मर जाए तो हो रहा जैसे नवियां मलका इस तरह नहीं था। मतलब इवन बीवी की मोहब्बत में जो सबसे बड़ा दुनिया में चीज है वो आपने वो देखी हुई है ना, ताजमहल। ताजमहल, मुमताज महल जो थी, मुमताज महल के तकरीबन 19 डिलीवरियां हुई हैं। उस वक्त भी प्रेग्नेंट थी 16वें बच्चे के साथ के 19वें बच्चे के साथ। असी समझे बस हूँ किसे काम दी भी नहीं, कोई और लब्बा सारा स्टफ हमें वो सबसे रियल जो फैमिली है ना, जो मोहब्बत है, वो इधर से चलती है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले हजरत आदम और हजरत हव्वा। तो अब सोचें, जिंदगी अपनी दे दी है और अपनी बीवी की मोहब्बत मांग ली है कि बीवी की जिंदगी मांग ली है कि नहीं वो हो जाए। तो हुआ बाई चांस, इस तरह अल्लाह ताला ने करना होता है। उन्होंने दुआ भी की और अल्लाह ताला की तकदीर भी ऐसी थी कि जहांगीर ज्यादा बीमार हो गया, मलका ठीक हो गई। बादशाहों के साथ ये होता था, अकबर और हुमायूं के साथ भी हुआ था। हुमायूं बड़ा था ना, अकबर उसका बेटा था। तो अकबर बीमार हो गया, बेटा छोटा, तो उसने कहा कि ये तो फिर बीमार हो गया तो आगे हुकूमत कौन करेगा। तो हुमायूं ने उनके गिर्द चक्कर लगाए साथ और अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह ये बुखार जो है ये मुझे कर दे, इसको बचा ले, हमने हुकूमत करनी है, यहाँ पे इस्लाम फैलाना है, जो भी है, जो भी उनके इरादे अल्लाह ही जानते हैं। एनीवे, हुमायूं मर गया, अकबर जिंदा रह गया। तो बादशाहों की भी, मैं कल भी स्टोरी अल्तमश की शेयर की थी ना, कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग फौत हुए मौजूदा इंडिया में, बख्तियार काकी, जो मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के शागिर्द थे। तो बख्तियार काकी जब फौत हुए तो उन्होंने कहा कि उनकी एक, वो चाहते थे कि हमारा जनाजा ऐसा बंदा पड़े जिसने कभी ज़िंदगी में हराम नहीं खाया और कभी असर की 4 रकात जो सुन्नत है वो कभी नहीं छोड़ी। कोई बंदा सामने नहीं आया। बादशाह सलामत खुद आए कि और रोए कि ये मेरा ये राज था, अल्लाह के साथ मेरा एक डिफरेंट ताल्लुक था जो इन्होंने, मतलब बादशाह इतने अच्छे होते थे। तो ये बात कहाँ पे पहुंची थी हमारी, नूरजहां। तो नूरजहां ने ये किया कि सबको कहा कि बाहर निकल जाओ, बादशाह की तबीयत ज्यादा खराब है, शोर ना मचाओ। तो पता था कि बादशाह फौत हो गए। और आपके अंदर जो आप फौत हो जाता है बंदा, कोई भी या कोई भी जिंदा चीज फौत हो जाती है, तो सबसे पहले जो कीड़े मकोड़े हैं वो आंदरों से निकलते हैं, क्योंकि आंदरों में सारा वो आप कह लें कि बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, तो वहीं से बैक्टीरिया फिर डिके का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। तो उसने सर चीर के सारी अंतड़ियां वहां निकाल दी ताकि बादशाह को हिफाजत से, बगैर उसकी बॉडी को कुछ हुए और बदबू करे, लाहौर पहुंचाया जा सके। अगर मैंने अभी पता चल गया दुनिया को कि मतलब कि बादशाह फौत हो गया है, तो लोगों ने तो हमला कर देना है और बादशाहत खत्म हो जाएगी और यकदम मुल्क में लड़ाइयां पैदा हो जाएंगी। तो मलका ने फिर सबको अलहदा करके, बादशाह फौत हो गया, मलका उस तरह फौत हालत में लाहौर लेके आई हैं, अंतरियां वहां दफन कर दी और लाहौर में जाके किया कि अब मैं मलका हूं, बादशाह फौत हो गए हैं, और सारा इंतजाम अपने हाथ में संभाल के। मलका इतनी सहनी थी, कोई नहीं गल समझ आ गई। तो ये बात हुई कि ये मकबरा जब बना था ना, तो ये उस जमाने में तकरीबन 9 लाख में बना था और दुनिया में इतना बड़ा प्रोजेक्ट कोई नहीं था। इतना बड़ा प्रोजेक्ट दुनिया में कोई नहीं था। मतलब आप सोचें कि मियां मीर के लिए इन्होंने शायद सिखों को जो बड़ी अकीदत थी, तो बाद में रंजीत सिंह ने पैसे रखे कि इसका कुछ बजट रखा जाए मेंटेन का 500 रुपये, क्योंकि 500 इतना होता था कि 500 से वो मेंटेन हो सकता था। तो ये कितने का बना है, 9 लाख, इतना ऊपर, यानी कि आप कह लें कि सोने लगे हुए थे। वो सोने सारे लूट लिए गए, बाद में आने वाले बादशाहों ने लूटे और सबसे ज्यादा सिखों ने लूटे। रंजीत सिंह
रंजीत सिंह, हाँ इधर से ही उतार के गोल्डन टेम्पल बनाए, इधर से ही उतार के रंजीत सिंह की वो सारी चीज़ें बनी। तो रंजीत सिंह ने ये काफ़ी चीज़ें, रंजीत सिंह की जो बुरी बात थी वो ये थी, अंग्रेज़ों ने बाद में आके यहाँ से रेलवे गुजारनी थी तो उन्होंने कुछ बेड़ा गर्क किया। नूरजहां के भाई जो थे आसिफ दौला के क्या नाम है, उनका भी मज़ार इधर है, 3 बंदों का इधर है। तो वो अब सबसे बुरी हालत में है। अब वहाँ पे ऐसे लगता है कि कचरा पड़ा हुआ है फलाना, क्योंकि लोग हैं कि कौम एक किस्म की नीम मुर्दा हालत में है ना, उन्हें पता ही नहीं है कि हमारी हिस्ट्री क्या है, किस किस्म के लोग थे। समझ आ गई बात आपको? तो इसको पूरा बजट उस तरह नहीं मिला। फिर हम आए इधर, अब रंजीत सिंह की बात हो रही थी। रंजीत सिंह जब था तो कोहिनूर जो सुना हुआ ना, हीरा दुनिया का सबसे बड़ा मशहूर फलाना, ये गोलकंडा में इंडिया से निकला था, फिर बादशाहों के पास रहा। तो जब रंजीत सिंह ने ये हीरा कैप्चर किया, किससे? दोस्त मोहम्मद से, अफगानिस्तान के बादशाह से, जब अफगानिस्तान में इस किस्म की खाना जंगी और वो, अब ये हीरा किधर है? मलका इंग्लैंड के पास। उन्होंने यहाँ से फिर लिया सिखों से, जब हुकूमत हुई रंजीत सिंह के मरने के बाद, फिर सिखों की हुकूमतें आपस में टूट गई। फिर ये हीरा यहाँ पे किला बाला हसार में उनको हैंड ओवर किया गया। जहाँ पे हैंड ओवर किया गया वो जगह है जो बादशाही मस्जिद और शाही किला के दरमियान में जो जगह है ना, वहाँ पे रंजीत सिंह का दरबार लगता था, जहाँ पे एक कॉर्नर में इकबाल का मज़ार। तो वहाँ पे रंजीत सिंह ने उनसे ये कोहिनूर का हीरा लिया। वो फैमिली आप कह लें दोस्त मोहम्मद बादशाह की उधर ही आई हुई थी, उनकी हो गेस्ट थी। तो बादशाह ने, रंजीत सिंह ने कहा ये हीरा निकालो, तो देना पड़ा उन्होंने ऑफ कोर्स। तो इस खुशी में रंजीत सिंह ने वो दरमियान में वो जो एक बारादरी सी बनी हुई है ना, उस खुशी में तमीर की थी 3 साल में, कोहिनूर हीरा मिलने की खुशी में। तो एक ये पता होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट और क्राफ्ट का बहुत बड़ा दिलदादा था रंजीत सिंह। यानी आप रंजीत सिंह आर्ट और क्राफ्ट इतनी ज़्यादा पसंद थी कि यूरोप का कोई भी बड़ा पेंटर और आर्टिस्ट ऐसा नहीं था जो उस जमाने में रंजीत सिंह के पास ना आया हो अपनी पेंटिंग दिखाने और इनाम लेने। हर बंदा आया था, जो भी यूरोप के बड़े नाम थे उस वक्त। यूरोप चाहे ये अब बात है 1810 to 30, 1810 से लेकर 1830 तक जितनी भी कल्चरल तरक्की हुई है ना, सबसे ज़्यादा उस दौर में। समझ आ गई? तो ये आर्ट एंड क्राफ्ट, ये बंद लिखा हुआ भी हो, ठीक। पढ़ाई का इतना शौक था कि वो अंग्रेज आ गए, उन्होंने कहा कि जी हमने बना ली है छापा खाना, तो हमें छापा खाना यहाँ पे कायम करने दें। उसने कहा कि छापा खाना तो कायम अब करें, तो उन्हें और भी डर था कि छापे खाने थे तो ये अपने दीन की तबलीग करेंगे। तो उसने कहा कि ठीक है मैं छापा खाना लगाने देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि हमारी हर लड़की को, उस वक्त पंजाब बहुत बड़ा था, मतलब पूरा कश्मीर भी पंजाब में ही था, आप समझे, हर खातून को जिसकी शादी हो उसको एक कायदा पंजाबी का मिलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि 100% औरतें मुल्क की तालीम याफ्ता हों। ये रंजीत सिंह की सोच थी, हालांकि पढ़ा लिखा नहीं था। समझ आ? इवन अकबर बादशाह खत्म होने वाला है, ने जिम्मे लगा रखा था कि, इसीलिए मैं कहता हूं कि अकबर बादशाह, रंजीत सिंह ये बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से। तो उसने कहा था कि 100 साल से पुरानी जो भी बिल्डिंग होगी, हर 5 साल बाद मुझे उस बिल्डिंग की रिपोर्ट दी जाएगी कि उसकी क्या हालत है, उस पर क्या होने वाला है, काजी को। समझा कि ना, इतना ज्यादा वो अपनी हिस्ट्री को, नॉलेज को प्रिजर्व करने वाले थे। दरख्त काटना मना था रंजीत सिंह के दौर में, दरख्त काटना मना था कि कोई दरख्त नहीं काटेगा। मतलब लाहौर में 2 बंदे मशहूर हैं कि दरख्त ना काटने पे, जिन्होंने, अब तो इन्होंने अपनी कैनाल एक्सपैंड करते हुए 10,000 दरख्त काट दिए। लाहौर की पिछले 8-10 सालों में कोई 3 अरब तो इन्होंने दरख्त काट काट के कमाया है। तो आपने बताया था माल रोड, हाँ माल रोड जिन्होंने बनाया है ना, उनका नाम था नेपियर, जिन्होंने डिजाइन किया। तो नेपियर ने, दूसरा उसके इंजीनियर्स ने कहा कि इधर से इधर, इधर से इधर, इधर ऐसे सड़क बनती है, या सीधी सड़क बनानी हो तो ऐसे बनती है। तो उसने कहा सीधी बनानी है, ठीक है बनती है, तो लेकिन फिर क्या होगा? उन्होंने कहा कि ये दरख्त रास्ते में काटने पड़ेगा। उसने कहा नहीं, यह नहीं हो सकता, मैं दरख्त नहीं कटवा सकता, सड़क को ऐसे रीडिज़ाइन करो कर्व लेती हुई, लेकिन दरख्त मैंने एक भी नहीं काटने देना। तो ये जो 2 बंदे ना मशहूर हैं, नेपियर और रंजीत सिंह, तो इनकी बड़ी अच्छी चीज़ें भी थी। मतलब इसने उस वक्त इंग्लैंड, पोलैंड और वहाँ से जो सबसे बड़े टॉप के हकीम थे, वो उस वक्त भाटी और इन दरवाज़ों में रहते थे, वहाँ से मंगवाए हुए थे। डॉक्टर हार्बिंजर, जर्मन डॉक्टर भी मंगवाए हुए थे। तो इनके इसके तो सारे जो जर्नैल थे, नेपोलियन बोनापार्ट वहाँ पे हार गया था, तो उनके 3-4 बड़े जर्नैल, वेंचूरा, कोख्त और ये जो जिससे
पठान बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्या नाम है, अबू तबेला, वो सर फ्रेंच